हमारे डिस्पर्स डाइंग प्रोसेस के दौरान, प्रिंटिंग के दौरान जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं या फाइबर यूज़ करते हैं, अब उसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट है। ये मैंने कहा था कि हर बच्चे ने जो भी टॉपिक तैयार करना है, जो भी इंडस्ट्री का काम करना है, एनवायरनमेंट का ज़रूर उसमें बताना है कि क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पेक्ट है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करने में क्या उसका रोल है। तो कोई भी काम ऐसा जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं, उसका थोड़ा या ज़्यादा कोई ना कोई इम्पेक्ट होता है हमारे माहौल के ऊपर। तो हमने अपने माहौल को सेव करना है, इसको बचाने के लिए हमें जो काम करना पड़े हम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये समझ लें कि अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो हम आइंदा आने वाली नस्लों को ऐसा माहौल देंगे कि जिसमें वो सांस लेने के लिए भी उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है हमारा एनवायरनमेंट। तो इन्होंने किरण ने कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर किए हैं, मैं वो साथ साथ आपको बता देता हूँ कि वो जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन फिर उसी तरीके से रोक के बाद बीच में कमेंट्स आपको देता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kiran Aslam. I am from BS Chemistry. Today I am going to present my presentation and my topic is environmental hazards of dispersed dyes. So first we will see what are dyes and what they do. Dyestuffs give color to the material on which they are anchored. Dyeing is one of the most important operations in the textile industry and a variety of dyes are used for dyeing. Some dyes are water soluble, are solubilized prior to use, and require SAR linkage of variable forces to impart affinity for the fiber. And the dyes may be insolubilized within the natural fiber after being applied in a water-soluble form. Or they were made to react chemically with the fiber to prevent their removal. The dispersed dyes are used for the dyeing and printing of polyester. Polyester, it is a highly crystalline thermoplastic polymer, quite tightly packed together. Polyester is dyed with dispersed dye. When dyed with dispersed dye has been found to give high concentration of polluting substances and results in greater harmful effects of wastewater. Dyeing technology for the polyester fiber and fabric is complex, but in comparison of the other dyes like wax, sulfur, direct dyes, the dispersed dyes give more pollution load after the dyeing. So here we will see the harmful effects of acid used in dyeing. Acid, for example, acetic acid, formic acid are such acids we use in dyeing of polyester to maintain the pH between 4.5 to 5.5. But due to the presence of two carbon atoms in the acetic acid, its biodegradability is not ideal. So steps were taken to substitute acetic acid by other organic acids for maintaining the pH for dyeing efficiency at an optimum level. So how we overcome the problem? For the purpose of the study, the two other acids used were oxalic acid and formic acid. These two acids are biodegradable and have low TOC, although oxalic acid has the same TOC as acetic acid, but it is diacid, so the amount required is less. The total organic carbon of formic acid is just half of acetic acid. The cause of pollution are unexhausted dye stuff and other chemical added to dye liquor as well as washing, cleaning process of dyeing, which bring about high harmful effects. Next are the harmful effects of active and dispersing. इसमें जो बात की है इन्होंने, आपने उस पर अगर गौर किया तो मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्स डाइंग हो या प्रिंटिंग हो, हमने एसिडिक पीएच में करनी होती है, 4.5 से 5.5 पीएच। और लास्ट टाइम में जो आपको लेक्चर दिया था मैंने उसमें बताया था कि ये प्रोसेस जो होता है इसमें हम डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं और साथ हम एसिड यूज करते हैं। और मैंने ये भी बता दिया था कि हम एसिडिक एसिड नहीं करते। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसका एक इम्पैक्ट ये है कि इसका जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है इसमें CH3COOH, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन आते हैं और फार्मिक एसिड में 1 H आता है, 1 कार्बन आता है।
तो इसका अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी केमिकल यूज करते हैं, हमने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। यानी कि कार्बन एमिशन, कार्बन पैदा करना और कार्बन को यूज करना कम से कम करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। अब अगर यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप वो करते हैं फार्मिक एसिड, उसका एक और बेनिफिट है जो इन्होंने नहीं लिखा, वो ये है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली बेहतर होता है। अगर हम एसिटिक एसिड डालते हैं तो उसका हमें ये भी नुकसान है कि वो जल्दी उड़ जाता है, और कॉस्टिंग में तकरीबन एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड के रेट में कोई खास फर्क नहीं होता है इंडस्ट्री में। तो हम मोस्टली फार्मिक एसिड को, इसके अलावा यहाँ पे लिखा ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड का एक तो बेनिफिट ये है कि ये डाई एसिड है, यानी कि अगर इसमें कार्बन भी दो हैं तो उसके साथ दो ओ एच अपना दो एच भी मतलब वो दे रहा है। तो इस तरीके से वो एवरेज वही फार्मिक एसिड जितना ही इसका कार्बन टीओसी बनता है। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है जो इन्होंने नहीं बताया वो मैं आपको बताता हूँ, अभी नोट कर लें। वो ये है कि ये जंग उतारने में भी, कपड़े के ऊपर अगर रस्ट लगा हो, जंग लगा हो, तो जंग उतारने में भी ये फायदा देता है। यानी कि ये उसके जो रिमूवल ऑफ समझ लें कलर्ड इम्प्योरिटी या कोई भी रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज में भी हेल्प आउट करता है। तो फायदा ही है इसका एक्सैलिक एसिड का। इसके अलावा एक और एसिड भी यूज हो सकता है जिसका मैंने आपको बताया था, वो भी सिट्रिक एसिड है। ये सिट्रिक एसिड भी अगर आप यूज करेंगे तो वो भी काफी बेटर रिजल्ट है। इन सबसे बेस्ट वो ये है कि आप एक बफर सोल्यूशन यूज करते हैं 4.5 pH का बफर। आपको पता है कैसे होता है, कैसे बनते हैं, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप एक ऑर्गेनिक बफर जिसका जो है एनवायरनमेंट के ऊपर कोई डेंजरस इम्पैक्ट ना हो, आप वो यूज कर सकते हैं। Agents. In polyester dyeing, surface active agents are invariably added to assist in the dyeing process. As we saw in the dyeing mechanism of the polyester, we add active and dispersing agents that increase the diffusion of the dye into the fiber. But these active and dispersing agents have harmful effects on the environment because these agents made by sodium salt of cresol naphthalene sulfuric acid formaldehyde condensate. Surface active agents are employed to prevent surface deposition of dye. Wetting agents, softeners, soaps, detergents made by alkyl sulfates, alkyl sulfonate, ethylene oxide, fatty alcohol condensate. All these chemicals are very hard to biodegrade and some are toxic too. After the dyeing process, the unused dye and chemical cause greater effluent load and adverse effect to the environment. ये जो चीज है, ये जो यहाँ पर बात हो रही है वो ये कि यहाँ पर अगर आप डिस्पर्सिंग एजेंट को यूज करते हैं तो वो भी उनकी केमिस्ट्री बताई, वो भी एनवायरमेंट सेफ्टी नहीं होती। किस बेस पे ये कह रहे हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। लेकिन अगर आप अगर मैं आपको करंट सिनेरियो की बात करूँ, इंडस्ट्री में ऐसी प्रोडक्ट्स वैसे ही बैन हो चुकी हैं। यानी कि अगर हम इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो हम एपीईओ फ्री डिटर्जेंट होता है जिसमें कोई नोनाइल फिनोल या इस तरह के थॉक्सिलेट्स जो हैं वो नहीं होते। तो वो हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है इंडस्ट्री में अगर हम चीज़ बेचने जाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है एपीईओ फ्री है, तो वो हमें वहाँ पर इस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज जो है ये चीज़ जो मोस्टली प्रॉब्लमेटिक होती है, अब सेल ही नहीं कर सकते अब आप। और इसी तरीके से डिस्पर्सिंग एजेंट्स की भी केमिस्ट्री हो, कोई भी केमिस्ट्री हो, हम उसके ऊपर हमने ये चीज़ उनको रिटर्न में देनी होती है कि हमारी प्रोडक्ट्स, इवन अब तो ये है कि प्रोडक्ट्स जो है वो गॉड्स अप्रूवल होना चाहिए। तो अभी अमसल ने भी जो प्रेजेंटेशन दी है इसको मैंने सर्टिफिकेशन, इसमें बहुत सी इसने सर्टिफिकेशन मिस कर दी है। हालांकि मैंने जो लास्ट टाइम आपको 12-14 किस्म की बताई थी, जिसने 4-5 बनाई है। तो अमसल भी इस चीज़ को पूरा करे, अपनी सर्टिफिकेशन पूरी करे। वो आपने बिल्कुल नहीं, इसमें आपने ना गॉड्स शामिल किया हुआ है, ना आपने ब्लू साइंस शामिल किया हुआ है। आपने क्रेडल टू क्रेडल किया हुआ है या एक दो और इको सर्टिफिकेट किए हुए। बाकियों के भी ऊपर भी कोई मटेरियल को इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आपने वो मेरा ख्याल मेरा लेक्चर सुना ही नहीं था जिसमें मैंने अच्छे तरीके से सर बताया तुम्हारा था बना वो। के सेंड कर दूं? हाँ, उसका पार्ट 2 आपको बनाना ही पड़ेगा। वो मैं आपकी अभी इसके बाद आपकी चलानी थी, तो मैं उसमें आपको गाइड करता हूँ कि आपने कितनी मिसिंग की है। अच्छी खासी मिस हो गई आपसे। तो वो आपने बहुत शॉर्ट सा बनाया है 10 मिनट के, और उसमें भी आपने वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं है, तो आप उसका पार्ट 2 बनाएं। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि अब तो हम ऐसा केमिकल कर ही नहीं सकते, लेकिन ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं ये भी बात ठीक है। अभी भी हमारी लोकल इंडस्ट्री में ये हो रही हैं यूज़। यानी कि हमारी, अगर आप, ये तो मैंने एक्सपोर्ट की बात की कि अब नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाले जो डिस्पर्सिंग एजेंट है
नेफ्थलीन बेस और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये अभी भी हमारे जो यूज़ हो रही हैं विदाउट सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स अभी भी आ रही हैं और यहाँ पे लोकली भी बन रही हैं, लोग उसको धड़ाधड़ खरीद भी रहे हैं क्योंकि उनके ख्याल में शायद हम पाकिस्तानियों की जान जो है इतनी कीमती नहीं है जितनी ये एक्सपोर्ट वालों की है। तो हम लोग ना अपना ख्याल कर रहे हैं ना माहौल का ख्याल कर रहे हैं और तबाही फेर रहे हैं हम लोकल इंडस्ट्री में। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि ये माहौल को बचाना भी हमारे इस्लाम का हिस्सा है। अगर हम दरख्त लगाते हैं या माहौल को बचाते हैं तो ऐन इस्लाम है, लेकिन हमें नमाज कुरान रोज़े का पता है, माहौल का हमें पता नहीं। हम समझते हैं कि ये शायद कोई अलग किस्म की दुनियावी बातें हैं, हालांकि ये ऐन इस्लाम है अपने माहौल को बचाना, पानी को बचाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आपके पास बेशक दरिया भी हो, आप वज़ू के लिए भी उतना ही पानी लें जितना आपको ज़रूरत है। तो ये हमारे रिलीजन में, हदीसों में, कुरान में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो कि एनवायरनमेंट सेफ्टी में है। अगर आप एक वो ऐप आती है 360, उसमें जस्ट एक दरख्त लिखें, उसको टाइप करके देखें तो आपको पता चलेगा दरख्तों के बारे में कितनी कुरान में आयतें हदीसें हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों पे नहीं कंसर्न होता, हमने कहना है हमने पैसा बनाना। तो इस किस्म की सोच जो है वो बुरी सोच है। So this is a graph from which we can see the comparison of pollutant of polyester into different methods: exhaust dyeing and carrier dyeing method. This is the weight to liquor ratio, means how much water is used for how much gram or kg of cloth or fiber, and this is the percentage of the pollutant. Next is the effect of carriers. We use carriers in the dyeing. अच्छा, ये जो आपने इतनी लिकर रेशो लिखे ना, 1:20 1:40, इतनी ज्यादा यूज नहीं होती ये। अब तो खैर 1:4 और 1:5 की गेम है अगर होती भी है, और 1:6 तक की है। 1:20 की और 1:40 की जो है ना, ये बहुत पहले आप हमारी मेरे पास मशीनें होती थी जिसको हम कहते थे विंच मशीनें। तो विंच मशीन के अंदर जो है ना पानी बहुत ज्यादा मतलब डालना पड़ता है, वो खुला एक समय टब होता है, उसके अंदर कपड़ा मूव करता है स्लो स्लो। तो वो भी खैर 1:20 तक जाती थी अगर बहुत भी जाती थी। 1:40 इतना पानी अब कोई भी नहीं जाया करता, और इतना ज्यादा जो है ना रेगुलर हमारी इंडस्ट्री में भी इतना ज्यादा, लोकल में भी इवन विंचें लगी हुई हैं, लेकिन वो मैंने देखा है 1:20 तक की एनफ होता है। तो ज्यादा पानी डालने की वजह यही होती थी कि इसको क्रीज से बचाना, कोई लाइनें ना आए, और ज्यादा पानी जितना खुला होगा उतना। लेकिन ये हमारे पंजाब में तो हो सकता था, कराची में फिर भी नहीं होता था। वहां पर तो पानी मिलता ही वो केडीए मतलब परचेज करना पड़ता है उनको कंटेनर्स, तब जाके वो पानी इस्तेमाल होता है, और इतना महंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दुनिया में तो खैर वैसे ही अफोर्ड नहीं होता, और आजकल तो बिल्कुल इस पे अब तो मतलब जो मशीनें 1 और 4 लिकर रेशो की है, अगर 1 किलो कपड़ा है तो 4 किलो पानी, इससे ज्यादा तो अब एग्जॉस्ट मशीनों में पॉसिबल नहीं है। मतलब काफी हद तक इस पे, मतलब मैंने जो लास्ट टाइम मशीनें 2003 में इंपोर्ट की थी, जो जिसके ऊपर मैंने काम किया था एमसीएस मशीनें, वो भी 1:6 की लिकर रेशो थी। उसके बाद मैं मसूर टेक्सटाइल में काम किया, वहां पर 1:4 की लिकर रेशो वाली भी मशीनें आई थी। तो चीजें अब बेहतरी की तरफ काफी। और ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब जो है मैं अब तो इवन ये ऐसी मशीनें आ गई हैं जिसमें वाटर यूज ही नहीं होता। तो वाटर फ्री डाइंग भी अब कंसेप्ट आ गया, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी में ही, अगर टाइम मिला तो। वो कैसे होती है, उसमें मशीनें किस तरह की होती हैं और किस तरह से हम डाइस मालिक्यूल को इंटरैक्ट करते हैं। Of polyester. Carriers applied in polyester dyeing. Most of the carriers contain emulsifying agent to facilitate dispersion or addition to warm water and are compatible with dispersed dyes. Carriers are not fully absorbed by the fiber. The left part of carrier increase the water load. Carriers are volatile in steam and heat treatment also. In this reason causes ये जो इन्होंने कैरियर बताया, ये इन्होंने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में भी इसके बारे में बताया था, सीओडी और बीओडी वैल्यू भी दी हुई थी। तो यहाँ पर जस्ट एक बात कि कैरियर का काम होता है कि लो टेम्परेचर पे डाइंग में इस्तेमाल होता है। हाई टेम्परेचर की बजाय कैरियर डाल दें तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर पे हम क्यों लेके जाते हैं उसको स्वेल कराने के लिए प्लास्टर को। तो प्लास्टर को जब लो टेम्परेचर पे ये स्वेलिंग करवा दें, लेकिन ये फुली एब्जॉर्ब नहीं होता, ये आपके पोल्यूटेंट में, आपके वेस्ट वाटर में आता है। और ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर आपका कैरियर में ये वाली जो चीज़ें जो इन्होंने केमिस्ट्री लिखी है, ऑर्थोफिनाइल फिनोल है, एन अल्काइल
थैलेमाइड है, इसके अलावा एक्रिलिक एस्टर बेस है, मिथाइल, इसके अलावा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मतलब ये वाली जितनी केमिस्ट्री लिखी है इन सब के इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे कम है वो डाइक्लोरोबेंजीन और ट्राइक्लोरोबेंजीन बेस है। लेकिन मैं इसकी केमिस्ट्री की डिटेल भी कैरियर की अगर आप डिस्कस करें तो इन सब की प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ फर्क होता है, इनके रिजल्ट्स में भी होता है, कहीं ना कहीं पे हमें किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे फिक्सिंग एजेंट है, वो इसमें जिक्र नहीं है, वो खैर कॉटन की डाइंग में हम ज़्यादा उसको लगाते हैं। तो फिक्सर भी अगर हम लगाते हैं तो वो भी फॉर्मल्डिहाइड बेस जो है वो इतना अच्छा मतलब वो ज़्यादा अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। लेकिन दूसरी तरफ वो फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट इंक्रीज करता है जो कि कार्सिनोजेनिक है। तो हम फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम लो फॉर्मल्डिहाइड या फ्री फॉर्मल्डिहाइड फिक्सर फिक्सिंग एजेंट लगाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं होता। तो जब हम एनवायरनमेंट को सेव करना होता है तो हमें कहीं ना कहीं पे एनवायरनमेंट की वजह से अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बाद लोग क्या करते हैं वो इस पे कंप्रोमाइज नहीं करते, वो कहते हैं हमें चीज की क्वालिटी जाए, एनवायरनमेंट जाए जहां मर्जी, हमें उससे कंसर्न नहीं है। तो ये वाली थिंकिंग भी ठीक नहीं है। हम चीज इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की अगर करनी पड़े, वैसे ये रिसर्च चलती रहती है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल है कि हम समटाइम, अब तो खैर अच्छी चीजें इसी तरह से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजन यूज होता है, मतलब उसको भी एज अ रेजन हम लगाते हैं क्रीज रिकवरी में, इस तरह की चीज़ों में। तो वो भी अब जो है ना फ्री फॉर्मल्डिहाइड रेजन, और उसकी भी डिफरेंट केमिस्ट्री है। तो वो अब मैं आगे जब एक एक को असाइनमेंट भी दी हुई है ना रेजन पे, तो उसकी जब आएगी तो हम वहाँ पर वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो हमें कहीं ना कहीं पे फिर कंप्रोमाइजिंग की तरफ जाना पड़ता है किसी चीज़ की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले वक्त में एजो डाइस आते थे जो प्योर एजो क्लास की मतलब नाम से ही बिकती थी, रेक्टिव डाइस से भी बेहतर थे उसके रिजल्ट। उसकी वॉशिंग फास्टनेस बहुत अच्छी थी और कलर बड़े आपके कॉटन के ऊपर लगते थे, तो मतलब बड़ा टाइम निकालते थे, कपड़े का रंग ही नहीं उड़ता था, बड़े ख़राब भी नहीं होते थे। लेकिन क्या था, वो कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर हो गए, इस पर रिसर्च हुई, तो फिर हमें दूसरी डाइस की तरफ जाना पड़ा। वो कंपैरेटिवली वैसे रिजल्ट तो नहीं थे लेकिन इम्पैक्ट उसका भी। लेकिन अगर देखा जाए रेक्टिव डाइस के भी अपने प्रॉब्लम है, सल्फर डाइस के भी प्रॉब्लम है, वेट डाइस के भी। तो कहीं ना कहीं पे हम आते हैं जब हम इसी तरीके मैंने आपको बताया था वेट डाइस की अगर आप बात करते थे तो इंडिगो डाई भी उस तरह के प्रोसेस में आती है, लेकिन उसकी वॉशिंग फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं होती, क्रॉकिंग फास्टनेस अच्छी नहीं होती जो जीन्स के ऊपर हम लगाते हैं, मैंने आपको बताया। तो उसकी वजह से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी चाहिए फिर वैट लगाएंगे, वैट की वजह से एनवायरनमेंट भी डैमेज होगा। तो जब हम नेचुरल की तरफ जाते हैं तो हमें उतना, अब जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ, आप कॉटन की शर्ट या कॉटन का सूट या आप जो लॉन के सूट खरीदते हैं, वो एक सीजन के बाद वो इतने रफ सी लुक आ जाती है कि वो लगता है कि ये बस ऐसे ही है। मतलब उसको आप कहीं भी से फंक्शन में पहनते हुए ज़रा दो दफ़ा सोचते हैं। लेकिन जो हमारे पॉलिएस्टर के इस तरह के सिंथेटिक फाइबर वाले होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से शाइन भी, चमक भी, और बड़े अच्छे। इस तरह से आप जेंट्स की पैंटें देख लें, एक आप कॉटन की पैंट लेते हैं और एक सीज़न के बाद उसका देखिए तो उस पे बुर भी आ जाती है, उसका कलर भी फेंट हो जाता है धो धो के। लेकिन अगर आपकी वो ब्लेंड वाली जो ड्रेस पैंट होती है, वो मेरा ख्याल आप 4 साल बाद भी निकालेंगे तो वो आप बेशक किसी फंक्शन पे पहन लें। तो ये वाले कंप्रोमाइज़ होते हैं नेचुरल में और सिंथेटिक में। तो हम, लेकिन अगर माहौल को बचाना है तो हमें इन चीज़ों पे ऊपर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, हमें कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, क्योंकि वो कॉस्ट उस कॉस्ट से कम है कि कल को आपकी नस्लें तबाह हो जाएँ। उससे ये कॉस्ट फिर भी कम है। Air pollution, and they have offensive odor, and some of the chlorinate type are significantly toxic to fish and bacteria sludges. There are ओडोर नहीं होता, ओडर जो स्मेल है उसकी बात हो रही है। some karyotype and the amount of COD and BOD present in them. Effects on water bodies. Ions of dispersed dye in water streams either reflect back the solar radiations or scatter that affect the littoral zone of the water bodies. The entire ecological cycle, including self-purification system of water stream, is disturbed due to the lack of reservoir oxygen. The indiscriminate discharge of untreated wastewater is more conspicuous in case of developing countries rather than developed ones. Dispersed blue, whose mass to liquor ratio is 79.79:1, and dispersed orange 25 dyes. ये किरण आपसे मिस्टेक हुई है, ये लिकर रेशियो नहीं लिखी हुई 79:1। ये डाइस के जो है ना नंबरिंग है
और ये 1 क्या है, मतलब ये अगर आप किसी भी डाइस का देखें तो कोई ना कोई उसका भी सीआई नंबर होता है, तो ये मे भी उस सेंस में लिखा हो। मोस्टली जो डिस्पर्स डाइस के अंदर ये इस तरह से 1 2 लिखा होता है, ये होता है कि कॉपी शेड है, जो मेरे इलम में है। अब मुझे नहीं पता कि जहाँ से आपने लिटरेचर लिया है उसकी बैकग्राउंड क्या है। एक होता है ये जैसे 79 है ना, ये एक उसका होता है, लेकिन जिस तरह से 1 2 ये लिखा होता है ये उसके कॉपीड वर्जन होते हैं, यानी कि सीआई नंबर वही होता है लेकिन टोन का थोड़ा सा फर्क हो तो हम इस तरीके से नंबर लिखते हैं। ये आई थिंक ये वाली चीज है। बाकी अगर आप मुझे अपना वो भेजेंगे तो फिर मैं मजीद देख लूंगा आपने ये मटेरियल कहाँ से लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रॉपर साइटेशन हर बच्चे की तरह किसी ने नहीं दी कि इसके आगे लिख दे कि ये मटेरियल कहाँ से लिया है, तो मैं बंदा खुद देख ले। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर साइटेशनों के साथ आपने वर्किंग करनी है, जो किसी ने नहीं की, कोई गौर से सुनना ही नहीं होता बात को। Having as a group are toxic which entering the environment in such quantities are concentrations that have direct and enduring harmful effect on the environment as well as the aquatic system by producing metabolites during their formation. अच्छा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो पानी से रिलेटेड है, कि पानी के अंदर जो है ये इसकी जो सोलर रेडिएशन है वो भी डिस्पर्स डाइस के जो आयनिक फॉर्म में होते हैं वो फिर नीचे नहीं आती और एनारोबिक कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ को भी सन रेडिएशन चाहिए होती है। सन रेडिएशन के बहुत से फायदे हैं। इसके अलावा अगर एक और फायदा ये है कि ये आपके पानी के अंदर जो जितनी भी टॉक्सिक चीजें, बैक्टीरिया और इस तरह की चीजें होती हैं उनको भी किल करने में फायदेमंद होती है। तो जब सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर चीजें बैड इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा कई तरह का, वो फिर एक पूरा इकोलॉजिकल साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। Next is the toxicity due to dispersed dyes. Allergies from dyes. Contact allergic reactions to synthetic textile dyes have been noticed since 1868. In 1940, nylon stocking were introduced in the American market, and soon after their introduction, cases of nylon stocking dermatitis were reported. This was originally called nylon allergy. ये जो स्टॉकिंग होता है ना, ये मेडिकल में, आप मेडिकल टेक्सटाइल है ये बेसिकली। इसमें ये होता है कि आपके जैसे टांगों में या कहीं पे आपकी नर्व्स के अंदर स्वेलिंग हो जाए और वहां पर ब्लड की ब्लॉकेज होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है लोगों की टांगों में, तो वहां पर फिर स्टॉकिंग मिलती है। वो क्या करती है, आपके जिस्म को प्रेस करती है जोर से, और दबाने से स्वेलिंग कम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है और बंदे को, और ये महंगी आती है, बारीक सी होती है, कि जैसे इन्होंने बताया नायलॉन भी होती है इस तरह की, लेकिन बाद दफा चूंकि वो सिंथेटिक फाइबर होता है, पॉलिएस्टर भी होता है, ये इस किस्म की चीजें वो जो उसको डाई करने के लिए जो डाइस यूज होते हैं या उसको कलर करने के लिए, तो वो समटाइम प्रॉब्लमेटिक होती है। मैंने फादर के लिए एक दफा ली थी, वो थी वाइट कलर की जर्मनी से, तो वो स्टॉकिंग उनको तो एलर्जी, लेकिन वही वाली बात है कि सबको एलर्जी होती नहीं है। एलर्जी मीन एक खास किसी के अंदर होता है स्किन में या उसके ब्लड के अंदर कुछ ऐसा। वो अगर आप देखें तो यूट्यूब पे एक वीडियो भी मैंने एलर्जी के ऊपर करवाई थी एक स्टूडेंट से, तो वो आप एलर्जीज की टाइप्स और एलर्जीज कौन सी होती हैं वो आप वीडियो भी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या रीज़न होती है। तो वो एलर्जीज होने का चांस तो होता है सिंथेटिक फाइबर से और ये केमिकल्स और डाइज से। Then, after this, it was found that the dermatitis was caused by dyes, not by nylon. This is the toxicity of these two dispersed dyes. Next is the aquatic toxicity. Colored substances present in aquatic living organisms have been associated with changes in protozoan colonization rate, phytoplankton species composition, and primary productivity. In addition, secondary production, macroinvertebrate behavior, and macroinvertebrate community system can be affected. The color can also alter the availability and toxicity of heavy metals to fishes. These pollutants increase the adverse consequences in the color, odor, and taste of surface water. So here are some techniques that we use to remove dye. These techniques include Fenton process, ozonization, membrane separation, coagulation, electrocoagulation, and flocculation, co-precipitation, oxidation, ion exchange resin,
degradation by microorganisms, photochemical, and adsorbing using different kind of absorbent. We will discuss some of them. The first is Fenton process. In a Fenton process, hydrogen peroxide is used in the presence of iron sulfate to decolorize the effluents at a high rate and at a high concentration of the reagents. In yet another study done by Morrison et al., it was observed that the pH of the solution had immense bearing on the rate of decomposition when the non-biodegradable azodiodine was effectively mineralized with iron and hydrogen peroxide. The advantage of the Fenton reagent is that no activation energy is required for activating hydrogen peroxide, so this is cost-effective method of generating hydroxyl radicals utilizing easy-to-handle reagents, but a major disadvantage of this method is the production of substantial amount of iron hydroxide precipitate, non-retention of the homogeneous catalyst added as an iron salt, which further contributes to additional water dilution. The next technique is ozonation. Ozonation is another process which is fundamentally an oxidation process. Ozone is an unstable gas which can degrade back to oxygen, and during this transition, a free oxygen atom or free radical is formed. This free oxygen is highly reactive to disinfection of bacteria or organic molecule. The next one is membrane separation. In membrane separation, a semi-permeable phase controls the rate of movement of various molecules between the phases. Membrane and ozonation process was used together for treatment of reactive dye containing wastewater. Membrane processes often do not scale up to accept massive stream sizes and also have chemical incompatibilities. The next is chemical oxidation. A recent addition in the list of available methods for the treatment of colored effluent in the chemical is the chemical oxidation of dye by utilizing ultraviolet and a strong oxidant. The most commonly utilized oxidant for this purpose is hydrogen peroxide. Photochemical degradation. Dye degradation in presence of hydrogen peroxide, Fenton process, and ozonolysis has successfully eliminated color from effluents. Nowadays, nanosciences has started stepping into remediation process due to the large surface area over bulk. Liu et al. Used UV radiation and titanium dioxide catalysis for the decomposition of azo dye and demonstrated that titanium dioxide has photocatalytic efficiency for azo dye acid black 1 in water. Microbiological decomposition of synthetic dyes. The use of microorganisms for the removal of synthetic dye from effluents offers considerable advantage because of relative inexpensiveness and generation of non-toxic end products. But a stable chemical composition of the majority of such compounds makes them highly resistant to microbiological attack. To add to this, a well-furnished lab and trained handling is required for bacterial culture and their application. So the next and the last technique is coagulation and flocculation. It is a simple and cost-effective process. It is a combination of two distinct procedures. The first one is coagulation, in which the destabilization of a given colloidal suspension or solution takes place. Coagulation helps to overcome the factors that promote the stability of a given system. This is achieved by utilizing suitable coagulating agents like aluminum or iron salts are used. Coagulation is followed by flocculation, a process which facilitates the introduction of destabilized particles so that they come in contact with each other and thereby form large agglomerates which can easily separate it through methods like gravity setting. The first process, for example, coagulation, is completed in a very short duration, whereas flocculation requires more time to complete. Electrocoagulation is a combined technique in which aluminum or iron is used as anode and the coagulating metal cations are released in situ as long as an electrical current is applied. So these are the techniques that we use for the removal of dyes. So that's all from my side. Thank you. ये जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं, ये आपको जितने भी आपने अभी डाइस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, चाहे वो रिएक्टिव है
चाहे वो डिस्पर्स हैं, चाहे वो वेट हैं, वट एवर, ये वाली टेक्निक्स होंगी। आपने सब जो मैंने आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ाया था वो आपको मैंने पढ़ाया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है, ये उसी की एक्सटेंशन है, वही चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर अब ये वाली जो टेक्निक्स हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब इन्होंने यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखें तो ग्रेजुअली किस चीज़ पे, पहले जो डाइस डाइंग प्रोसेस के दौरान या प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इन्होंने उसको कवर किया। प्रिंटिंग में इन्होंने थिकनर को कवर नहीं किया कि अगर उसका इम्पैक्ट क्या आता है केमिकल, इन्होंने सिर्फ डाइस का बताया, और इन्होंने बताया उसका आपके एसिड का, ठीक है, कैरियर का। लेकिन इसमें जो ये डाइंग का इन्होंने बताया, और डाइंग में और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे अगर आप पिछले इनकी प्रेजेंटेशन देखें तो वहाँ पर हमने जो उसका किया था, अल्लाह आपका भला करे, रिडॉक्स क्लियरिंग, ठीक है, रिडक्शन क्लियरिंग प्रोसेस था, उसके अंदर कास्टिक सोडा भी यूज़ हुआ था, ठीक है, और इसके अलावा डिटर्जेंट भी यूज़ हुआ था, इन्होंने वो स्किप किया, उसके बारे में नहीं बताया। तो ये आप किरण नोट कर लें, आपने ये चीज़ें ये भी पूरी करनी है इसकी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो आप इसी तरीके से अगर आप प्रिंटिंग में आ जाए, तो प्रिंटिंग में एसिड के साथ जो है ना वो आपको मैंने बताया था पोटैटो स्टार्च और टैमरिन स्टार्च, उनका वेस्ट वाटर में निकलते हैं कि नहीं निकलते, तो क्या इम्पैक्ट आता है, वो भी डिस्कस नहीं किया। तो डिस्पर्स डाइंग और प्रिंटिंग की सारी चीज़ें आप पूरी करके, तो वो आप बेशक इसका पार्ट 2 बना देना, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स का, डिस्पर्स डाइस का। तो वो उसमें आप जो है, अब आपसे मिस क्या हुआ है, कास्टिक सोडा मिस हुआ है, इसके अलावा आपसे डिटर्जेंट मिस हुआ है, जो डिस्पर्स डाइंग में यूज होता है। इसके अलावा जो पॉलिएस्टर की जो वेस्ट होती है, जो कि प्रोट्रूडेड फाइबर बारीक बारीक से रेशे होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते, वो वेस्ट वाटर में जाते हैं, तो फिर उनका क्या करते हैं, ठीक है। 3 चीजें होगी। चौथी चीज उधर से आपका जो थिकनर है, जो थिकनिंग एजेंट हम डिस्पर्स प्रिंटिंग में यूज करते हैं वो, इसके अलावा जो हाई सब्लिमेशन, लो सब्लिमेशन और मीडियम सब्लिमेशन डाइज है, उनकी वेस्ट में कोई फर्क आता है। वो मतलब अगर सब्लाइम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सब्लिमेशन मतलब है कि वो गैसियस फेज में चले गए, गैसियस फेज के चले गए, इसका मतलब है कि वो एयर मिशन में चले गए, हवा में चले गए। अब हवा में जाने से उनका फिर क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो एयर मिशन में भी आ जाता है। तो इसका एयर मिशन वाला पॉइंट भी क्लियर करना है। आपने इसका वाटर वाला कर दिया, ठीक है, इसके जो आपने फिर एंड पे फाइनली बता दिया कि ये वेस्ट वाटर में हम क्या करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर आप डायरेक्ट का रिएक्टिव डाइस का भी जिक्र, आपने स्पेसिफिकली पॉलिएस्टर डाइस का ही मटेरियल सर्च करके इसमें ऐड करके इसका पार्ट 2 बनाना है। किरण समझ आ गया, कोई पॉइंट तो नहीं है जो आपको समझ